Good morning, children. I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School, Jhansi. Children, in my previous videos, we have discussed about units and measurement. In this chapter, we have discussed these points that is physical quantity, non-physical quantity, fundamental quantities, derived quantities, units, and their fundamental and derived units. Now, further in this chapter, we are going to discuss about units and how these units are used. Also, we are going to discuss about measurement. So before we start that, I would like to explain you a relation which is P is equal to Nu. This is a format of writing any physical quantity where P is a physical quantity, N is numeric value, and U is unit. So I have given an example that you can see force is equal to 10 Newton. So it is in the format of P is equal to Nu. That is F represents P, 10 represents N, that is numeric value, and Newton represents U, that is unit. And also you can see that N is inversely proportional to U, that is numeric value is always inversely proportional to its unit. For example, if we say that 1 centimeter is equal to 10 millimeter, so since centimeter is a bigger unit, then the numeric value is 1, that is it is a small numeric value. If we consider millimeter, then millimeter is a smaller unit, so the numeric value is 10, that is greater. So in short, we can say that if numeric value is big, then unit would be small. If unit is big, then numeric value would be small. So both are inversely proportional. Now further in this chapter, we are going to discuss about units. So first of all, let us discuss what are the points that we need to follow to choose a unit for a physical quantity. So first point is it should have a definite size. हर यूनिट का एक डेफिनेट साइज होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. सेंटीमीटर हैज़ गॉट अ डेफिनेट साइज दैट इट इज़ इक्वल टू 10 millimeter. Or 1 kg is equal to 1000 gram. So it has got a definite size, and this size should never change. Second is it should not change with time. The value of the unit should not change with time. Like for example, in 2020 1 kg is equal to 1000 gram, then in 3020 also 1 kg should be equal to 1000 gram. Third is it should not change due to external causes like temperature. So because of temperature, pressure and other factors, the value of unit should not change. If 1 centimeter is equal to 10 millimeter at 30 degrees Celsius, then even at 100 degrees Celsius 1 centimeter should be equal to 10 millimeter. No external cause could ever change the value of a unit. Even if in our country in summers, if 1 centimeter is equal to 10 millimeter, in winters also it would be 1 centimeter is equal to 10 millimeter. External cause cannot affect the value of unit. It should be easily accessible. अगर मेरे लिए 1 kg एक यूनिट है टू मेजर मास, देन मेरे फ्रेंड के लिए भी 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम है और वो भी उस यूनिट को यूज़ कर सकता है. ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट केवल मैं यूज़ कर सकता हूँ और मेरा फ्रेंड यूज़ नहीं कर सकता. एवरीबडी कैन बी वुड बी एबल टू यूज़ एनी यूनिट, एंड इट शुड बी ईजिली accessible to everybody. Now it should be easily accessible, then it should be internationally accepted also. Everybody should be able to use a unit. Also it should be internationally accepted. मतलब जो यूनिट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम यूजिंग न्यूटन एज अ यूनिट, देन इन अमेरिका ऑल्सो न्यूटन वुड बी यूज्ड एज अ यूनिट. In England also it would be used as a unit, but there are some units which internationally it is not used, so we should not use such a unit which is internationally not used because it would create confusion. For example, हम लोग हमारे झांसी में या हमारे बुंदेलखंड रीजन में हम लोग कई ऐसी यूनिट्स हैं जो यूज़ करते हैं जो हो सकता है दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ नहीं होती हों. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बीघा यूज़ करते हैं एक यूनिट. बीघा एक यूनिट है जो हम लोग जनरली ज़मीन को नापने के लिए यूज़ करते हैं. बट इफ़ इन केस अमेरिका इफ़ यू यूज़ बीघा एज अ यूनिट, नो बडी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ 1 बीघा.
So it is better to use such units which could be internationally accepted. If I am using kg as a unit, then it would be very easy if it is used in all the countries, then it would avoid confusion. Like for example, if I am using a unit in India which is used for measurement of length. सो एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कपड़े की दुकान पे जा कर के शर्ट के लिए कपड़ा ख़रीदता हूँ तो मेरे लिए इंडिया में आसान होगा, लेकिन अगर मैं अमेरिका में जा कर के उस यूनिट को यूज़ करता हूँ कपड़ा ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर उस यूनिट को यूज़ ही नहीं किया जाता हो, तो वो कन्फ्यूजन की वजह से करेक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगी. इट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल. रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल ख़रीदने जाते हैं और अगर जो सेलर है उसके पास में 1 किलो का बाट नहीं है, तो वो कई बार क्या करता है कि वो अपने फ्रेंड से 1 किलो का बाट ले करके उसके एक फ़िज़िकल बैलेंस में रख करके दूसरी तरफ एक कोई स्टोन या पत्थर को रख करके 1 किलो नाप लेता है और फिर उस पत्थर को 1 किलो के बाट की तरह यूज़ कर लेता है. सो इट इज़ रिप्रोड्यूसेबल. हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स को. नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब आप जानते हैं कि देर आर सो मैनी कंट्रीज़ इन दिस वर्ल्ड. हर कंट्री का अपना अपना तरीका होता है मेजरमेंट करने का. और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तब लोगों ने अपने अपने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बना रखे थे. लाइक फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि हमारी कंट्री में लेंथ नापने के लिए मीटर यूज़ होता हो सकता है किसी और कंट्री में लेंथ नापने के लिए मिलीमीटर यूज़ होता हो सकता है किसी और कंट्री में लेंथ नापने के लिए सेंटीमीटर यूज़ होता हो सकता है किसी और कंट्री में लेंथ नापने के लिए फुट यूज़ होता हो. सो बेटर इज़ हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सिंगल सिस्टम बना देते हैं जिससे कि सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं. सो पहले मैं आपको ये बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आर वेरियस सिस्टम्स. सो एज यू कैन सी दैट जनरली वी मेजर लेंथ, मास एंड टाइम, and the first system is FPS system. So how this FPM system is created? अगर मैं लेंथ को फुट से नापूं, मास को पाउंड से नापूं और टाइम को सेकंड से नापूं, ये जनरली ब्रिटिशर्स करते थे. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फुट का मैं अगर F ले लूँ, पाउंड का मैं P ले लूँ और सेकंड का मैं S ले लूँ, सो इट बिकम्स FPS सिस्टम. तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स ने अपना एक अब खुद का सिस्टम बनाया हो FPS सिस्टम, जिसमें वो लेंथ को फुट से नापते थे, मास को पाउंड से नापते थे और टाइम को सेकंड से नापते थे. देन हो सकता है कोई और कंट्री हो जिसमें लेंथ को मीटर से नापा जाता हो, मास को केजी से नापा जाता हो और टाइम को सेकंड से. सो इफ़ आई टेक M फ्रॉम मीटर, K फ्रॉम केजी एंड S फ्रॉम सेकंड, सो इट बिकम्स MKS सिस्टम. हो सकता है कि किसी और कंट्री में लेंथ को सेंटीमीटर से नापा जाता हो, मास को ग्राम से नापा जाता हो और टाइम को सेकंड से नापा जाता हो. सो इफ़ आई टेक C फ्रॉम सेंटीमीटर, G फ्रॉम ग्राम एंड S फ्रॉम सेकंड, सो इट बिकम्स CGS सिस्टम. सो सच like this there were various systems which were used in the world, but it was creating a confusion because जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने लगे, तो फिर यूनिट्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा. क्योंकि हो सकता है कि किसी एक लाइक फॉर एग्जांपल एक रशियन है जो इंडिया में आया, हो सकता है उसकी कंट्री में मास नापने के लिए केजी को यूज़ किया जाता हो और हमारी कंट्री में मास नापने के लिए ग्राम को यूज़ किया जाता हो. तो जब वो रशियन हमारी कंट्री में आएगा तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी किसी भी चीज़ को ख़रीदने में या कुछ भी मेजरमेंट को करने में. तो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक इंटरनेशनली एक कोई एक्सेप्टेड सिस्टम बना लेते हैं ताकि सारे कन्फ्यूजन्स दूर हों. और लेट अस डिसाइड वन यूनिट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी विच वुड बी इंटरनेशनली यूज्ड. सो सच अ सिस्टम वॉज नोन एज SI system. This is System International and this was created by International Bureau of Weights and Measures. इस सिस्टम में हमने क्या डिसाइड किया कि जैसे मान लीजिए फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन डिसाइड कर ली, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूटन वुड बी यूज्ड एज अ यूनिट फॉर फोर्स. इफ़ मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड लेंथ की हम लोग यूनिट मीटर ही यूज़ करेंगे.